So moving forward in the discussion of disease control, we're going to talk about disease surveillance. Now there are two terms. Disease surveillance के साथ एक और term concurrently use होता है, that is disease monitoring. So again we need to differentiate both of these terms. So what is the definition of disease monitoring? ठीक है, और disease monitoring is the examination of the ongoing, ठीक है, analysis of the ongoing routine measurements of the disease, ठीक है, performance and analysis of the routine measurements. And what is disease surveillance? We call that there is continuous scrutiny of the factors that determine the occurrence and distribution of disease. Now ये तो definition की बात हो गई. Talking about the differences, आ जाओ. We got that monitoring is a linear activity. अब हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि मॉनिटरिंग इज़ अ लीनियर एक्टिविटी. मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ रूटीन मेजरमेंट्स. ऑब्वियसली अब फिर से डेफिनेशन देखते हैं. परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस ऑफ द रूटीन मेजरमेंट्स. So but it is a linear activity, means we are analyzing the routine measurements and the disease has been eliminated. Suppose that the disease has been eliminated, we have discussed it, then the disease monitoring will also be stopped. और वैसी बात है, डिजीज़ एलिमिनेट हो चुकी है तो मॉनिटरिंग की मीन्स रूटीन मेजरमेंट्स की अब कोई ज़रूरत नहीं रहेगी. बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द सर्विलेंस, देन व्हाट इज सर्विलेंस? इट इज स्क्रूटिनी ऑफ ऑल द फैक्टर्स, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड ऑल द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इन डिजीज़, ठीक है, चाहे डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कंडीशंस ऑफ इल हेल्थ हो. सो इट्स अ कॉन्टीन्यूस साइकिल. आई नो बहुत फुद्दू चीज़ है वैसे ये, बट फिर भी डिस्कस करनी पड़ेगी. It's a continuous cycle. It goes round and round even after the disease has been eliminated. So this is the thing that we need to remember. Another thing is that there is no feedback present in disease monitoring, but surveillance में obviously disease feedback होगा. And also इनबिल्ट एक्शन भी इसमें नहीं होता. फिर से इसका क्या मतलब है? देर इज़ नो इनबिल्ट एक्शन प्रेजेंट. सपोज दैट वी आर मॉनिटरिंग अ डिजीज़ एंड यदि हमें लगता है उसमें कोई दिक्कत है तो हम उसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे. बट यदि डिजीज़ सर्विलेंस की बात की जाए तो देर इज़ इनबिल्ट एक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट. मीन्स हमें ऑलरेडी पता है कि हमें क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, हमें सोल्यूशन पता है, हमें जस्ट उस पर अप्लाई करना है. सो देर इज़ इनबिल्ट एक्शन इज़ प्रेजेंट. देन टॉकिंग अबाउट it's a one time linear activity but it's a continuous cycle. Stops once disease is eliminated or eradicated, we have discussed it, but it continues even after disease has been eliminated or eradicated. So this is the major basic difference. ठीक है, मॉनिटरिंग क्या है और सर्विलेंस क्या है. सर्विलेंस इवन डिजीज़ खत्म होने के बाद भी चलती रहेगी बिकॉज वी नीड टू स्टिल कंटिन्यूस स्क्रून द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द अकरेंस. ठीक है, फिर भी हम चेक करते रहेंगे कि डिजीज़ का अकरेंस कहीं हो तो नहीं रहा या फिर इसकी वजह से हेल्थ नहीं हो रही है. सो एंड ऑब्वियसली इट्स अ ब्रॉडर टर्म. नाउ अंडरस्टैंडिंग इट मोर क्लियरली, और डिजीज सर्विलेंस इज द, फिर से हम देखते हैं, ongoing systemic collection and analysis of the data and the provision of information which leads to the action being taken to prevent and control a disease. तो बहुत ही ज़्यादा दूर थ्योरेटिकल बात है. Now coming towards the next thing, more important thing, that is types of surveillance. ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा क्लियर होता है. सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स. ठीक है, देयर इज़ एक्टिव सर्विलेंस, there is passive surveillance, and the last one, yes, there is a sentinel surveillance. So very easy for us to understand. Passive surveillance वो होती है when the patient himself or herself reports to the health system. ये अब आप कहोगे ये तो कॉमन सी बात है, हमेशा पेशेंट ही आता है. नहीं, हमेशा नहीं आता. देयर आर सम केसेस इन विच हेल्थ सिस्टम अप्रोचेस the patient. So this is an example of active surveillance. Okay, what is the difference we got? ठीक है, पैसिव सर्विलेंस में पेशेंट हेल्थ सिस्टम के पास जाता है, ऑब्वियसली मोस्टली तो यही होता है. ठीक है, इन हॉस्पिटल्स. सो 90% केसेस इन पेशेंट रिपोर्ट्स टू द हेल्थ सिस्टम, बट
एक्टिव सर्विलेंस इज व्हेन पेशेंट रिपोर्ट्स टू द हेल्थ सिस्टम रिपोर्ट्स टू द पेशेंट, और ये ऑब्वियसली लेस कॉमन होता है, ये तो ठीक है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज दिस, वी नीड टू remember the examples of the diseases, like there is malaria. ठीक है, so for the surveillance of malaria, we reach the villages or whatever the rural areas. now अब मलेरिया का सर्विलेंस करता कौन, एक्टिव सर्विलेंस, सो वी नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ डन बाय मल्टीपर्पज़ वर्कर, मेल. ठीक है, कोई भी केस ऐसा रिपोर्ट होता है फीवर का, सो MPW हैज़ टू रीच द पेशेंट, उसके घर पे जाके उसे चेक करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा डायग्नोसिस के लिए. सो इट इज़ डन बाय मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल और एक्टिव सर्विलेंस ऑफ मलेरिया. व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स, लेट्स डिस्कस देम हियर. ठीक है, मलेरिया के अलावा वी सेड मलेरिया का एक्टिव सर्विलेंस किया जाता है व्हेन अगेन हेल्थ सिस्टम अप्रोचेस द पेशेंट. अदर एग्जांपल्स आर TB. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस. अच्छा, TB का एक्टिव सर्विलेंस कौन करता है, सो इट इज़ डन बाय आशा वर्कर के द्वारा किया जाता है. एंड वन मोर एग्जांपल दैट वी नीड टू रिमेंबर इज यस पोलियो. ठीक है, पोलियो का भी एक्टिव सर्विलेंस किया जाता है सिंस इज करेंटली रेयर डिजीज़. एंड ये किसके द्वारा किया जाता है, सो इट इज़ डन बाय सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर. ठीक है, अगेन इसमें ऐसा कोई भी केस आएगा, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्लैसिड पैरालिसिस का केस आता है, सो surveillance medical officer has to report, collect the sample for diagnosis. So this is the thing that we have talked about. Now what is active surveillance, let's read it out. Health system checks out actively the collection of data and goes out to community to collect data. ठीक है, seeks out actively, this is the key term that we need to remember. एंड पैसिव सर्वेलेंस में क्या हो रहा है, फिर से पैसिव सर्वेलेंस, डेटा इज़ इटसेल्फ रिपोर्टेड टू द हेल्थ सिस्टम. डेटा खुद पेशेंट लेके आ रहा है, पेशेंट खुद कह रहा है. एग्जांपल ले लेते हैं, पेशेंट विद फीवर कमिंग ऑन इज ओन टू PHC, CHC, डिस्पेंसरी या फिर हॉस्पिटल में. ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर इंडिया रिलाई ऑन पैसिव सर्वेलेंस, हम डिस्कस कर चुके हैं. एग्जाम्पल इसका लेते हैं एक्टिव सर्वेलेंस का. ठीक है, हेल्थ वर्कर गोज हाउस टू हाउस एवरी फोर्टनाइट टू डिटेक्ट फीवर केसेस. ठीक है, कलेक्ट ब्लड स्लाइड्स, सो दिस इज़ अ कंपोनेंट. ठीक है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है. ठीक है, जिसमें हम किसका सर्विलेंस कर रहे हैं, मलेरिया का. ठीक है, ये हम एग्जांपल देख चुके हैं. फिर से और कौन सी डिजीजेज हैं, देयर इज़ पोलियो, देयर इज़ TB. ठीक है, आगे चलते हैं. अच्छा, ये कौन है, हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल. एक्टिव सर्वेलेंस इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया इज सीन इन ये NVBDCP. तो दिस इज नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. देन इज अनदर नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम. ठीक है, सो इसमें भी एक्टिव सर्वेलेंस किया जाता है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेंटिनल सर्वेलेंस. इज अ सर्वेलेंस ऑफ मिसिंग हिडन और मिसिंग केसेस. एंड सेंटिनल सर्विलेंस में हिडन केसेस देखे जाते हैं. कैसे देखे जाते हैं, देखते हैं. ठीक है, अकरेंस ऑफ स्पेसिफिक कंडीशंस टू एक्सेस द स्टेबिलिटी और चेंज इन हेल्थ सिस्टम ऑफ अ पॉपुलेशन. सो सेंटिनल सर्विलेंस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मिसिंग केसेस एंड सप्लीमेंटिंग नोटिफाइड केसेस. ठीक है, एग्जाम्पल इसका लेते हैं. एग्जाम्पल हमने ले लिया HIV. ठीक है, सो सेंटिनल सर्विलेंस किया जाता है नाको में. ठीक है, नाको होता है नेशनल, नाको तो ऑर्गेनाइजेशन हो गई ना, ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें सेंटिनल सर्विलेंस किया जाता है. अब सेंटिनल सर्विलेंस कैसे होता है, इसका हम एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. हिडन केसेस जैसे कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आता है. ठीक है, कोई भी पेशेंट अपने पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आया, सो व्हाट वी डू इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लड डोनेशन के टाइम पे हम कुछ डिजीज़ का चेकअप करते हैं. एंड दैट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल डिजीजेस. एंड वन ऑफ देम इज़ यस HIV.
तो HIV हम चेक करते हैं, तो उससे अब ये कौन सा सर्विलेंस हुआ, ठीक है। क्या पेशेंट हमारे पास आया? यस, पेशेंट तो हमारे पास आया, बट उसने तो हमसे नहीं कहा कि आप चेक करो हमारा डेटा, उसने तो नहीं दिया, ठीक है। डेटा तो हमने खुद निकाला है, तो ये ना एक्टिव सर्विलेंस हुआ ना पैसिव सर्विलेंस हुआ। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेंटिनल सर्विलेंस, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स देर ऑल्सो, ठीक है, लाइक STD क्लिनिक्स। STD क्लिनिक्स में भी फिर से कोई भी पेशेंट अपने पास फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लेके आया, तो फिर से हम HIV का उसमें टेस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ANC क्लिनिक्स, कोई भी फिर से एंटीनेटल हमारे पास केस आता है, तो फिर से हम HIV का टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो सेंटिनल सर्विलेंस इज डन इन अ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वेयर इन STD क्लिनिक्स और ANC क्लिनिक्स आर सेंटिनल साइट्स टू मॉनिटर ट्रेंड्स, ओके।